الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله ما جاء به النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے 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 ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھیک عطا کرنے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کوٹری میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدع جافزا، اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری 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 زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انکا لعلی خلق نظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعین الاللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور نارلئی کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اسی آقا دو جہاں سیاہ لامکاں سرور انس و جاں خاتم پیغمبرہ والی ہر دو سرا نائب رب العلا جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پورا مجمع نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گلہائے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان ہم سنیت کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان. تڑپ کے بولو پیارے مسلمان سبحان اللہ. وہ امام احمد رضا خان جس نے قرآن کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا خان جس نے
कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा के अजमत व वक़ार को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत यूसुफ को पढ़ा, यूसुफ के हुस्न व जमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को पढ़ा, उनकी हिकमत व दानाई को पढ़ा। उसी इमाम अहमद रजा खान से ये नारलई सूबा राजस्थान दयारे गरीब नवाज का मुसलमान एक सवाल करना चाहता है, ऐ बरेली के इमाम अहमद रजा, तुमने नबी को पढ़ा, हजरत आदम को पढ़ा है, हजरत नूह को पढ़ा है, हजरत इब्राहिम को पढ़ा है, हजरत मूसा को पढ़ा है, हजरत ईसा को पढ़ा है, हजरत दानियाल को पढ़ा है, हजरत सुलेमान पैगंबर को पढ़ा है। अब ये मोहम्मद शफी साहब नारलई से इमाम अहमद रजा से सवाल करते हैं, ऐ इमाम अहमद रजा बता, मेरे रसूल को पढ़ा है कि नहीं, आमना के लाल को पढ़ा है कि नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा है कि नहीं, हलीमा की गोद के पाले को पढ़ा कि नहीं, जिसकी बीबी सैयदुल खदीजतुल कुबरा है उस रसूल को तुमने पढ़ा कि नहीं, जिसकी बेटी सैयदा फातिमा है उस रसूल को पढ़ा कि नहीं। तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है, ऐ नारलई के मुसलमानों, मैंने आमना के लाल को भी पढ़ा है, हबीबे परवरदिगार को भी पढ़ा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है उस रसूल को भी पढ़ा है, जिसकी जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा है उस रसूल को भी पढ़ा है। हमने कहा इमाम अहमद रजा खान फिर मेरे रसूल का मकाम क्या है? तो ताजदारे बरेली बोल रहा है, ताजदारे बरेली बोल रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बोल रहा है, इमाम अहमद रजा बोल रहा है कि मेरे रसूल का मकाम सुनना चाहते हो तो मेरे रसूल का मकाम ये है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और नारलई के मुसलमानों, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज मौलाना अहमद रजा खान मंजरी। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब बरेली का रजा बोल रहा है, मेरा रसूल सबसे अफजल आला है। हमने बरेली के रजा से पूछा, ऐ बरेली के रजा ये बता, जब मेरा रसूल आला है तो मेरे रसूल का अबू बकर कैसा है, मेरे रसूल का उमर कैसा है, मेरे रसूल का उस्मान कैसा है? तो बरेली के ताजदार बोलते हैं कि मेरा रसूल तमाम रसूलों में आला है, मेरे नबी का गुलाम अबू बकर तमाम सहाबा में आला है, हजरत उमर फारूक आजम अपनी अदालत में आला है, हजरत उस्मान गनी अपनी सखावत में आला है, हजरत अली अपनी बहादुरी में आला है, अब्दुल कादिर अपनी विलायत में आला है, और मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की हुकूमत में आला है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। देखो बोलो, मिस कॉल से काम मत लो, बोलोगे तो इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, फजर तक बोलूंगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर अपनी सदाकत में आला है, हजरत उमर अपनी अदालत में आला है, हजरत उस्मान अपनी सखावत में आला है, हजरत अली अपनी बहादुरी में आला है। हजरत अली की जब जुल्फ़िकार चली है, अली की जब जुल्फ़िकार चली है, अली की जब जुल्फ़िकार चली है, चूंकि ये रजब का महीना है, हजरत ख्वाजा की छठी का महीना है, हजरत अली की पैदाइश का महीना है, यही मेराज नबी का महीना है। हजरत अली की जुल्फ़िकार चली है तो बरेली का धरती का इमाम बोल रहा है, जब अली की जुल्फ़िकार चली, मैदान बदर में अली की तलवार चली, मैदान ओहद में अली की तलवार चली, मैदान खंदक में अली की तलवार चली, मैदान हुनैन में अली की तलवार चली, तो चारों जानिब से यही आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरा रजा बोल रहा है, हजरत अली का बेटा एक बगदाद मुअल्ला में आया, तमाम वलियों का इमाम बना दिया गया। जब गौसे आजम आया, तमाम वलियों का इमाम बनाया। हमने रसूलुल्लाह के गुंबदे खजरा की जानिब लो लगा कर कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर तो मक्का से बाहर नहीं गए, हजरत उमर तो मक्का से बाहर नहीं गए, हजरत उस्मान तो मक्का और मदीना से बाहर नहीं गए, हजरत अली तो अरब की सरजमीन से बाहर नहीं गए, हजरत तलहा अंसारी तो
عرب سے باہر نہیں گئے, حضرت زبیر ابن عوام تو عرب کی سرزمین سے باہر نہیں گئے. اے میرے آقا, ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو بخاری کون پڑھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ ہم ہندوستان والوں کو کلمہ کون سکھائے گا؟ تو گنبد خضرا سے آواز آئی, ارے مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھانے کے لیے کبھی ابو بکر آیا ہے, کبھی عمر آیا ہے, کبھی عثمان آیا ہے, کبھی علی آیا ہے. ہندوستان والوں تم پریشان مت ہو, تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے میرا بیٹا غریب نواز آئے گا. زور سے بولو, زور سے بولو, کھڑے ہو کر لگاؤ, کھڑے ہو کر لگاؤ نا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غریب نواز, جشن غریب نواز. طرف کے بولو سبحان اللہ. ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر مکہ سے نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت علی مکہ سے نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے محمد شفیع صاحب حضرت امام حسین نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے زین العابدین تشریف نہیں لائے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام باقر نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام جعفر نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام تقی نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے غوث اعظم نہیں آئے. اے اللہ, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے کس کو بھیجے گا؟ تو میرے رسول کی بارگاہ سے آواز آتی ہے, ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے ابو بکر کو نہیں بھیجوں گا, تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے عمر کو نہیں بھیجوں گا, تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے امام حسن کو نہیں بھیجوں گا, ارے تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے علی کا بیٹا, فاطمہ کا لال, حسن کا لاڈلا, حسین کا بیٹا, زین العابدین کا لخت جگر, تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے معین الدین کو بھیجوں گا. طلب کے بولو, تھوڑا سا آگے بڑھو, بولو طلب کے, زور سے بولو. تمہیں کلمہ پڑھانے کے لیے قاری عادل حضرت ابو بکر نہیں آئے, ہندوستان والوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے عرب کی دھرتی سے حضرت عمر نہیں آئے, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے محمد شفیع کون آیا ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے کے لیے کون آیا ہے؟ ہندوستان کا راجہ آیا ہے, ہمارا خواجہ آیا ہے, حضرت معین الدین آیا ہے, سنجر کا شہنشاہ آیا ہے. ارے میرے نبی نے کہا مکہ والوں کو کلمہ ابو بکر و عمر نے پڑھایا, ہندوستان والوں کو کلمہ معین الدین پڑھائے گا, اور کلمہ پڑھانے کے بعد معین الدین واپس نہیں آئے گا, کلمہ پڑھائے گا وہی, اور وہیں پر اس کی قبر بن کر دنیا کو بتائے گا جب تک ہندوستان میں خواجہ کا مزار رہے گا تب تک بھارت کا مسلمان رہے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غریب نواز, مولانا احمد رضا خان منظری. طلب کے بولو, اچھا لگ رہا ہے؟ بولو بولو. شفیع صاحب کا یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ بولوں گا, سرکار غریب نواز کے نام سے جلسہ سجایا ہے. پوری دنیا سمٹ سمٹ کر اجمیر پہنچ رہی ہے. میں بھی جب نارلئی آ رہا تھا, جب میری ٹرین اجمیر کے اسٹیشن پر گزری تو میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا, اے اجمیر کے شہنشاہ, تو اجمیر کا شہنشاہ نہیں ہے, تو ہندوستان کا شہنشاہ ہے, تو کشمیر کا بھی شہنشاہ ہے, تو کنیا کماری کا بھی شہنشاہ ہے, تو اتراکھنڈ کے پہاڑوں کا بھی شہنشاہ ہے, تو بھارت کے کونے کونے کا شہنشاہ ہے. اے میرے خواجہ, تو دنیا کو بلا رہا ہے, مجھے بھی بلا لے. تو اجمیر کے خواجہ نے کہا, احمد رضا منظری, ارے تجھے بلاؤں گا بھی اور تجھے پیسہ بھی دلواؤں گا. سبحان اللہ. طلب کے بولو, ہندوستان کا راجہ آ رہا ہے, ہمارا خواجہ آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر کی صداقت نہیں آئی, ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی اپنے آپ نہیں آئے ہیں, میرے خواجہ خود نہیں آئے ہیں, میرے خواجہ اپنے آپ نہیں آئے ہیں. ہم نے کہا ہمیں نارلئی میں کس نے بلایا؟ تو قاری عادل نے کہا کہ میری سرپرستی ہو گئی, میں بیچ میں میڈیٹر ہو گیا, تمہیں بلانے والا محمد شفیع ہے, کانٹیکٹ کرنے والا میں ہوں. تو میں نے کہا جب مجھے بلانے والا محمد شفیع کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ بریلی سے نارلئی بلا سکتا ہے, تو میرے نبی نے اعلان کر دیا, ارے دنیا والوں, تمہیں بلانے والا کوئی اور ہوگا,
हिंदुस्तान बुलाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को बुलाने वाला इमाम साहब, क्या नाम है आपका? सिकंदर रज़वी, माशाल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, हिंदुस्तान में बुलाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में भेजने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में लाने वाला ख्वाजा को कौन है? हिंदुस्तान में आने वाला ख्वाजा किसके कहने पर आया है? किसी बादशाह के कहने पर नहीं आया। मेरी कौम की माँ हो, तुम अजमेर मोहल्ला में नहीं, इस राजस्थान की धरती पर रहती हो। इस राजस्थान के गांव गांव पर, राजस्थान के करिया करिया पर, राजस्थान के शहर शहर पर, राजस्थान के चप्पे चप्पे पर, राजस्थान के कोने कोने पर, राजस्थान की गली गली पर, बल्कि हिंदुस्तान के करिया करिया पर, हिंदुस्तान के शहर शहर पर, हिंदुस्तान के हर मदरसे में, हिंदुस्तान की हर मस्जिद में, हिंदुस्तान के हर खानकाह में, हिंदुस्तान के हर इस्लामी इंस्टीट्यूट पर अगर किसी का एहसान है तो मेरे अजमेर वाले ख्वाजा का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नमाज, मसलके आला हजरत, मखदूम सिमना, मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसका एहसान है हम पर? हमारे ख्वाजा का एहसान है, हमारे ख्वाजा का एहसान है। पूरी मैं जीवनी, पूरी लाइफ, पूरी हिस्ट्री उलट के रखूंगा। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा के मुल्क में हम रहते हैं वो ख्वाजा आया कैसे है? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। देखो, बोलोगे तो समझ में आएगा। खाली मेरा साफा मत देखो, मेरे चेहरे को मत देखो, ये मत कहो कि साफा बहुत अच्छा है, जुब्बा बहुत अच्छा है, बल्कि मैं जिस ख्वाजा का नाम ले रहा हूं वो मेरा ख्वाजा बहुत अच्छा है। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में किसने भेजा है? किसी के बाप ने नहीं भेजा है, किसी की मां ने नहीं भेजा है, बल्कि हिंदुस्तान के शहर अजमेर में अगर ख्वाजा को भेजा है तो मेरे रसूल पाक ने भेजा है। सुभान अल्लाह। अब जरा भेजने वाले को देखना पड़ेगा। कारी आदिल साहब, इमाम साहब एक जुमला सुनो, मौलाना नफीसुद्दीन साहब एक जुमला सुनो। जब हिंदुस्तान का वोटर है, अभी 2024 में इलेक्शन होने वाला है, हिंदुस्तान के कोने कोने से वोट पड़ेगा। जब वोटर अपना वोट देगा तो वोटर एक प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रधानमंत्री भवन में भेजेगा, पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा। एक वोटर 5 साल के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति भवन के किनारे भेजेगा, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में भेजेगा, हिंदुस्तान के कैपिटल दिल्ली में भेजेगा। कौन भेजेगा? ये वोटर भेजेगा। कौन भेजेगा? हिंदुस्तान का शहरी भेजेगा, हिंदुस्तान का रहने वाला भेजेगा। 5 साल के लिए भेजेगा। तो देखना पड़ेगा, जब 5 साल के लिए वोट देने वाला किसी को वोट देता है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। अब मेरे ख्वाजा को वोट देकर हिंदुस्तान 5 साल के लिए नहीं बल्कि रसूल ने कह दिया, ऐ गरीब नवाज, हम तुझे सुबह कयामत तक के लिए भेज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नमाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं। प्रधानमंत्री 5 साल में बदल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 साल में एक्सपायर हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री 5 साल के बाद बदल जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी 5 साल के बाद बदल जाएंगे, है ना। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति 5 साल में बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। जितने मंत्री है 5 साल में बदल जाएंगे। सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री है 5 साल के बाद ये भी बदल जाएंगी। ऐ मेरे आका, जरा इतना तो बता दो, इस ख्वाजा को आपने भेजा है 5 साल के लिए भेजा, क्या 10 साल के लिए भेजा, 15 साल के लिए भेजा, 20 साल के लिए भेजा, तो 100 साल के लिए भेजा? तो मेरे रसूल के गुंबदे खजरा से आवाज आती है, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के बाशियों, हिंदुस्तान में बसने वालों, अरे जब तक आसमान का सूरज रहेगा, जब तक आसमान का शामियाना रहेगा, जब तक जमीन का बिछौना रहेगा, तब तक भारत में ख्वाजा का हुक्मरानी रहेगी। जब तक रहेगा तब तक मेरा ख्वाजा भारत में रहेगा, तब तक मेरा ख्वाजा
भारत में रहेगा। 5 साल के लिए नहीं आया है मेरा ख्वाजा, हमेशा के लिए आया है, हमेशा के लिए आया है। 5 साल वाले तो कुर्सी बदलेगी चले जाएंगे, लेकिन मेरे ख्वाजा की कुर्सी ऐसी है। तड़प के बोलो। अकबर की हुकूमत आई, चंद दिनों बैठा, चादर लेके ख्वाजा के दरबार में गया। हमने कहा अकबर तुम तो द ग्रेट अकबर हो, ख्वाजा के दरबार में क्यों जा रहे हो? तो अकबर बोला अरे मैं अकबर जरूर हूं, लेकिन हिंदुस्तान का असली अकबर तो मेरा ख्वाजा है। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, असली अकबर तो मेरा ख्वाजा है। शाहजहां भी आ रहा है दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में शीश नवाने के लिए, आ रहा है। ऐ ख्वाजा तेरा इतना ऊंचा मर्तबा कैसे हो गया? कौन से वोटर ने तुम्हें वोट दिया है? कौन सी कैबिनेट ने तुम्हें भेजा है हिंदुस्तान? तो मेरा ख्वाजा कहता मुझे किसी वोटर ने नहीं भेजा, मुझे किसी वोटर ने, रिकॉर्डिंग के जरिए सुनोगे जब तकरीर को तो बिस्तर में भी झूमोगे, बात कब्र में भी झूमोगे, जब ख्वाजा के दरबार में जाओगे वहां भी झूमोगे, कयामत के मैदान में भी झूमोगे। ऐ ख्वाजा हिंदुस्तान की हुकूमत आप ही को क्यों मिली है? हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को क्यों नहीं मिली? ऐ ख्वाजा हिंदुस्तान की हुकूमत का ताज निजामुद्दीन देहलवी को क्यों नहीं मिला? ऐ ख्वाजा हिंदुस्तान की शहंशाही का ताज फरीदुद्दीन को क्यों नहीं मिला? निजामुद्दीन को क्यों नहीं मिला? कुतुबुद्दीन को क्यों नहीं मिला? अलाउद्दीन को क्यों नहीं मिला? ऐ मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की हुकूमत का ताज कि छौछा के मखदूम सिमनानी को क्यों नहीं मिला? बरेली की आला हजरत को क्यों ना मिला? बंबई के मखदूम माहिम को क्यों ना मिला? बंबई के हाजी अली को क्यों ना मिला? क्यों ना मिला? तो ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र से आवाज आती है, नारलई के मुसलमानों, नारलई के मुसलमानों, नबुव्वत तो हजरत आदम को भी मिली है। बहुत ही कीमती जुमला दे रहा हूं, नबुव्वत तो हजरत आदम को भी मिली है, हजरत नूह को भी मिली है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी मिली है, इस्माइल ज़बीउल्लाह को भी मिली है, मूसा कलीमुल्लाह को भी मिली है, ईसा रूहुल्लाह को भी मिली है। अरे नबुव्वत तो तमाम नबियों को भी मिली है, लेकिन नबुव्वत मेरे रसूल मोहम्मद हबीबुल्लाह को मिली है। नबियों को नबुव्वत मिली है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने खाली नबी नहीं बल्कि नबियों का इमाम बनाकर भेजा है। अब मेरा ख्वाजा कहता है निजामुद्दीन को विलायत मिली है, फरीदुद्दीन को निजामत मिली है, कुतुबुद्दीन को विलायत मिली है, औलियाए कामिलीन को विलायत मिली है, मखदूम सिमना को विलायत मिली है, कलियर के शहंशाह को विलायत मिली है, दिल्ली के निजामुद्दीन को विलायत मिली है, दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दीन को विलायत मिली है, दिल्ली के नसीरुद्दीन को विलायत मिली है, पीलीभीत के शाहजी मियां को विलायत मिली है, बरेली के मुफ्ती आजम को विलायत मिली है। मेरा ख्वाजा कहता है अरे इन सबको विलायत मिली है और मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है। अल्लाहु अकबर। मुझे विलायत पर, जोर से बोलो, मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है, इनको विलायत मिली है, मुझे विलायत पर हुकूमत मिली है। अब निजामुद्दीन की विलायत अपनी जगह, निजामुद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, फरीदुद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है, अलाउद्दीन का अगर कोई इमाम है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। और कहूं पृथ्वीराज चौहान के ताबूत में कोई कील ठोकने वाला है तो अजमेर का मेरा मोइनुद्दीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी एनआरसी के जरिए बोलो, ख्वाजा को समझो, एनआरसी के जरिए पूछा गया क्या तुम इंडियन हो? आर यू इंडियन? कैन यू प्रूफ बाय द डॉक्यूमेंट्स यू आर इंडियन और नॉट इंडियन?
Indian Muslims, you will have to prove by the documents you are Indian or not Indian. बड़ा कोहराम मचा, साबित करो तुम इंडियन हो कि नहीं हो। हमने कहा हमसे मत पूछो हम इंडियन है कि नहीं है, हमसे मत पूछो हम इंडियन है कि नहीं। अजमेर में जो ख्वाजा लेटा है, जोर से बोलो, अजमेर में जो ख्वाजा लेटा उससे पूछो हम इंडियन है कि नहीं है, तो ख्वाजा की कब्र से आवाज आएगी, एनआरसी में पूछने वालों, मुसलमानों को इंडियन और गैर इंडियन पूछने वालों, मेरा ख्वाजा बोलेगा, अरे जब, बोलो 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 बोलो, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट, बोलो, ये जुमला बरेली में बोलते तो कोहराम हो जाता, तड़प के बोलो, शफी भाई बोलो जोर से, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट मैंने बिठाल दिए, एनआरसी पे अब किसी कागज की जरूरत नहीं। सुनो, मेरा ख्वाजा कहता है जब पृथ्वीराज चौहान के ऊंट मैंने बिठाल दिए और उसके सिपाहियों से कहा, ऐ पृथ्वीराज चौहान, अब मैंने ऊंटों को बिठाल दिया है, अब बिठालना मेरा काम है, उठाना तेरा काम है। तो पृथ्वीराज चौहान अपने आप को घुटनों के बल सरकारे ख्वाजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मोइनुद्दीन, जब तुमने ऊंट बिठाल दिए तब मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। तब मेरे ख्वाजा ने कहा, जब मेरे बिठाए हुए ऊंट हिला नहीं सकते तो 90 लाख को जो कलमा पढ़ाकर भारत में बसाया है उनको तुम भगा नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंद के राजा, हिंद के राजा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौर करो कारी साहब, इमाम साहब, जब ख्वाजा ने ऊंट बिठाल दिए, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान की थी, सिपाही पृथ्वीराज चौहान के थे, है ना। हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। अब हम ख्वाजा से पूछते हैं, ख्वाजा, ये ऊंट जो तुमने बिठा ले थे, तलवार मार के बिठा ले थे, कोई कोड़ा मारा था जो ऊंटों को बिठाला था? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं, नहीं, न मैंने कोड़ा मारा था, न लाठी मारी थी, न डंडा मारा था, न तलवार मारी थी। बम मारा था। ख्वाजा कहते हैं, उस वक्त में हिंदुस्तान में बम बना भी नहीं था। AK-47 की गोली मारी थी। तो ख्वाजा कहते हैं, उस जमाने में AK-47 का तो तसव्वुर भी नहीं था। फिर ख्वाजा मारा क्या तुमने? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं, मैंने जबान से ऊंटों के ऊपर मैंने अल्लाह का नाम पुकार दिया था। जबान से ऊंटों पर अल्लाह का, बोलो बोलो, अल्लाह का नाम पुकार दिया था। तो ऊंटों ने कहा, ख्वाजा, ऊंटों ने कहा, ख्वाजा, अब आपने बिठाल दिया है, अब कोई भी राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, पृथ्वीराज चौहान आ जाए, अजय पाल जोगी आ जाए, उसकी फौज आ जाए, उसका लश्कर आ जाए, उसके हथियार आ जाए, उसके वेपन्स आ जाए, उसके सिपाही आ जाए, उन ऊंटों ने कहा, ख्वाजा, जब तुमने बिठाल दिया है, अब कोई भी आ जाए हमें उठा नहीं पाएगा। अरे बिठालने वाला भी ख्वाजा होगा, उठाने वाला भी ख्वाजा होगा। तो पूरे भारत के कोने कोने से आवाज आई, अरे जब ख्वाजा ने ऊंटों को बिठाल दिया, कोई उठा ना सका, तो हमें भी ख्वाजा ने हिंदुस्तान में बसा दिया है। हुकूमत आएगी, चली जाएगी, जब तक मेरा ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। जब तक अजमेर का ख्वाजा रहेगा। राजस्थान वालों, तुम्हारी बात कह दूं, जब तक राजस्थान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं,
जब तक हिंदुस्तान का ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक गयासुद्दीन का बेटा ख्वाजा रहेगा, और कह दूं जब तक ज़ैनुल आबिदीन के जिगर का टुकड़ा ख्वाजा रहेगा, और बोलूंगा जब तक इमाम हसन हुसैन का लाडला ख्वाजा रहेगा, अरे जब तक अली का बहादुर बेटा ख्वाजा रहेगा, जब तक नबी का नवासा ख्वाजा रहेगा, तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। ख्वाजा ख्वाजगां दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ख्वाजा ख्वाजगां शाह हिंदुस्तान, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम। कितना बड़ा जलसा सजाया है शफी साहब ने आज के जमाने में। सिट डाउन प्लीज। कितना खूबसूरत जलसा सजा, और तो समझ में आ रही ना बात। तुम किसकी कनीजा हो? ख्वाजा की। किसकी? जोर से बोलो, किसकी? ख्वाजा की। शफी साहब ने इतना पैसा इस जलसे में खर्च किया, रंडियों को बुला के नचवा सकते थे। नचवा सकते थे कि नहीं? कारी साहब, भड़ुओं को बुलवा सकते थे। और एक बंबई का है जिसने पठान बनाई है, ये परेशान है बेचारे। पठान का बाइकआउट करो मेरे भाइयों। इस्लाम हर मूवी का बाइकआउट करता है, चाहे पठान हो चाहे कोई सी खान हो। इस्लाम हर मूवी का। हम तो ये कहते थे कि जितने आरएसएस के लोग हैं इतना बाइकआउट करते हैं कि हिंदुस्तान से सारी मूवी बनना ही बंद हो जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने बाइकआउट बहुत हल्का किया, भारी बाइकआउट करना था। अरे इस्लाम तो पहले ही दिन से फिल्मों का है। अब मेरे ख्वाजा से कहा, ऐ मेरे ख्वाजा जरा इतना तो बता दो। तो मेरा ख्वाजा कहता है, अरे मैं हिंदुस्तान का राजा हूं। हमने कहा तुझे किसने बनाया है? क्या हिंदुस्तान के पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है? हजरत ख्वाजा ने कहा नहीं। फिर किसने बनाया है? तो मेरा ख्वाजा कहता है, जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया। जब रसूल आया तो रसूल ने उमर को फारूक आजम बनाया। जब रसूल आया तो रसूल ने उस्मान ज़ुन्नूरैन बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने अली को फातह खैबर बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हजरत हसन को जन्नती जवानों का इमाम बनाया। जब मेरा रसूल आया तो रसूल ने हुसैन को शहीदों का इमाम बनाया। जब मेरा रसूल आया तो अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। तो मेरा ख्वाजा कहता है, उसी रसूल ने मुझे हसन चिश्ती को हिंदुस्तान का राजा बनाया है। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। अल्लाह। तो अब एनआरसी में कोई जरूरत नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाने की, हमारा ख्वाजा का मजार काफी है। बोलो, कलमा किसने पढ़ाया है तुम्हें? तुम्हारे बाप ने पढ़ाया या ख्वाजा पाक ने पढ़ाया? अब मैं आता हूं दूसरी जानिब। अच्छा बताओ, मैं पूरे हिंदुस्तान को ये चैलेंज करता हूं, कैमरा चल रहा है, दुनिया सुनेगी। पहला का जमाना था तकरीरें हवा में उड़ जाती थी। आज रिकॉर्डिंग है, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है सोशल, बहुत सारे हैं, सबके जरिए दुनिया सुनेगी। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कितना? और बढ़ा दूं? 2 लाख का इनाम दूंगा। और बढ़ा दूं? 3 लाख का इनाम दूंगा। शफी साहब घबराओ मत, तुम्हें नहीं देना, मुझे देना। और बताऊं? 5 लाख का इनाम दूंगा। और बताऊं, अगर गलत हो जाए तो हिंदुस्तान की कैपिटल राजधानी दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी के फंदे पर लटका के मुझे मार डालना। लेकिन एक जवाब देना पड़ेगा। बोलो, जब मेरा ख्वाजा संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान आया, कहां आया? कहां आया? हिंदुस्तान आया। तो मेरे ख्वाजा ने अना सागर पे, जहां पे आज गरीब नवाज का चिल्ला है, चिल्ला देखा है ना, अना सागर के किनारे एक पहाड़ी है, चूटी है, वहां पर कहते हैं गरीब नवाज का, यही वो जगह है जहां सबसे पहले गरीब नवाज आए थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहां पर अपना मुसल्ला बिछा दिया, और बिछाने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, आजान पढ़ो।
आजान पड़ी, अब जो चैलेंज कर रहा हूं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरे ख्वाजा के पास क्या था? एक मुसल्ला, एक तस्बीह, एक टूटा हुआ डंडा। वहीं पर ख्वाजा बैठ गया तो मेरे ख्वाजा के हाथ में कोई तलवार नहीं। अगर कोई दिखा दे ख्वाजा के हाथ में तलवार थी तो अहमद रजा मंजरी अपनी जबान कटवाने को तैयार है। अगर कोई दिखा दे मेरे ख्वाजा के पास वेपन्स थे तो अहमद रजा मंजरी तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। अब मैं पूछूंगा, तलवार ख्वाजा के पास नहीं थी, तलवार पृथ्वीराज चौहान के पास थी। हुकूमत ख्वाजा के पास नहीं थी, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के पास थी। लश्कर ख्वाजा के पास नहीं था, लश्कर पृथ्वीराज चौहान के पास था। अरे तलवार उधर है, ताकत उधर है, हुकूमत उधर है, सिपाही उधर है, हथियार उधर है, लश्कर उधर है, तमाम ताकत उधर है। तो हमने कहा ख्वाजा तूने 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे हुकूमत उधर थी, तलवारें उधर थी, रोबो दबदबा उधर था, तमाम सामाने जिंदगी उधर था, लश्कर उधर था, ताकत उधर थी और मेरे बाद खुदा की अजमत थी। उन्होंने तलवार चलाई, मैंने खुदा का दिया हुआ दीन चला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जश्ने गरीब नमाज। हिंद के राजा, हिंद के राजा, हिंद के राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो, ताकत पृथ्वीराज चौहान के पास, हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के पास, और मेरे ख्वाजा के पास क्या था? एक मुसल्ला था। क्या था? क्या था? क्या था? जोर से बोलो। और एक तस्बीह थी, तस्बीह पे क्या पढ़ रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी नबी का कलमा, कभी नबी का दुरूद, कभी अल्लाह का जिक्र पढ़ रहे हैं। तो मेरे रब ने कहा ऐ ख्वाजा तस्बीह घुमाना तेरा काम है, तस्बीह घुमाना और लोगों के दिमाग घुमा कर, दिलों को घुमा कर, तेरे कदमों में डाल कर कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना हमारा काम है। आला हजरत फरमाते हैं ख्वाजे ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। ठहर गया हिंदुस्तान में आकर, अकेला आया, अकेला आया, ठहर गया। नारलई वालों, तुम अपने बाप के साथ नहीं आए थे। बोलो अगर कोई आया हो तो बताओ। तुम में कोई अभी ब्राह्मण निकलेगा, कोई छत्री निकलेगा, कोई वैश्य निकलेगा, कोई पंडित निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा, लेकिन मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं, दुनिया में पहले कोई पंडित नहीं आया था। बहुत कीमती जुमला। दुनिया में कोई पहले ब्राह्मण नहीं आया था, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का नबी हजरत आदम आया था। बोलो सबसे पहले कौन आया कारी साहब? हजरत, और हजरत आदम अरबिस्तान में नहीं आए, हजरत आदम चाइना में नहीं आए, हजरत आदम बर्तानिया में नहीं आए, हजरत आदम यूरोप में नहीं आए, हजरत आदम कहीं और नहीं आए। हजरत आदम अगर आए हैं जन्नत से इस जमीन पर अगर आए हैं तो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे तुम ब्राह्मण बन के नहीं आए, तुम हजरत आदम की शक्ल में मुसलमान बन के आए, बाद में भटक गए तो मैंने कलमा पढ़ा के फिर से तुम्हें बता दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं, आदम की औलाद मुसलमान हो। ये मेरा ख्वाजा है। इसलिए दोस्तों, हुकूमत किसी की भी हो, जब रजब का चांद आता है तो दुनिया जाती है चलो अजमेर। अजमेर का डीएम परेशान कि पब्लिक को कैसे रोका जाए, अजमेर का रेलवे जंक्शन परेशान कि ट्रेनों को किधर से किधर डाइवर्ट किया जाए, अजमेर का रोडवेज जंक्शन परेशान। लेकिन मेरा ख्वाजा कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे बुलाने वाला मोइनुद्दीन है, भेजने वाला आमना का लाल है। अल्लाह।
भेजने वाला कैसा मजमा है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चादर भेजते हैं। बोलो चादर आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? बोलो नफीस भाई, शफी भाई, चादर गई के नहीं गई? मोहतरमा सोनिया गांधी ने भी चादर भेजी है। भेजते नहीं भेजते? क्यों भेजते हैं? एक अंग्रेज राइटर ने लिखा है, एक अंग्रेज मुफक्किर ने लिखा है कि मैंने दुनिया में देखा जिंदा लोग हुकूमत करते हैं, कोई प्रधानमंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई राष्ट्रपति बन के हुकूमत करता है, कोई गृह मंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई शिक्षा मंत्री बन के हुकूमत करता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन के हुकूमत करता है, कोई सांसद बन के हुकूमत करता है, कोई एमपी एमएलए बन के हुकूमत करता है, कोई गांव का मुखिया बन के हुकूमत करता है, कोई चेयरमैन बन के हुकूमत करता है। ये सारे के सारे जिंदा है, जिंदा हुकूमत करते हैं। अंग्रेज कहता है लेकिन हिंदुस्तान में मैंने इस कब्र को हुकूमत करते देखा है। अंग्रेज से पूछा वो कब्र किसकी है जो हुकूमत करती है? तो उस अंग्रेज ने कहा अरे हिंदुस्तान में एक ख्वाजा की कब्र है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। अल्लाह, ये मेरा ख्वाजा है जो कब्र के जरिए भी हुकूमत करता है। आओ देखो, आओ देखो आला हजरत क्या फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान के ख्वाजा की कब्र वो जगह है अगर तुम दुआ कर लो तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये मकाम है मेरे ख्वाजा का। अब आओ वो नक्शा भी खींच दे कि मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान आया कैसे। बयान करें या तकरीर खत्म कर दें? 1 घंटे की तकरीर तो हो गई, और बयान करें? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ख्वाजा आया कैसे? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु तिब्रिस्तान के इलाका सजिस्तान के कस्बा संजर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? संजर में पैदा हुए। बचपना था, अब्बा जान का विसाल हो गया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मुहतरम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे ख्वाजा बचपने के आलम में यतीम हो गए, तने तना बेयारो मददगार हो गए, बेसहारा हो गए। ख्वाजा गयासुद्दीन गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा का बचपना है, संजर की जमीन है। ख्वाजा गयासुद्दीन इंतकाल कर गए, ख्वाजा यतीम हो गए। अम्मी जान से कहा अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, आई वांट टू गो टू मदीना। अम्मी जान मैं मदीना जाना चाहता हूँ नाना जान का रोजा देखने के लिए। बचपने में मेरे ख्वाजा यतीम हो गए, कम सिनी का आलम है। बेयारो मददगार मेरा ख्वाजा हो गया। अब्बा ख्वाजा गयासुद्दीन दुनिया से बेयारो मददगार छोड़ के चले गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी अम्मी जान से कहा अम्मी जान मैं नाना जान के गुंबद खजरा को देखना चाहता हूं, इजाजत दे दो। मां ने कहा बेटा मेरी जिंदगी का तू ही आखिरी सहारा है, तू ही मेरा बेटा लगते जिगर है। मेरे बेटा तेरी जुदाई का सदमा कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे ख्वाजा ने कहा अम्मी जान जाने दो, नाना जान का दीदार कर लेने दो। मेरी कौम की औरतों अपने दिल पे हाथ रख के जरा सोचो तो सही, जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, बच्चा छोटा हो, माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। इकलौता बेटा हो, जिंदगी का आखिरी बुढ़ापे का सहारा हो, क्या गुजरेगी। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की माँ ने दिल पे पत्थर रखा, कहा मेरे बेटे जाओ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा इंतकाल से पहले अपने बेटे के लिए एक पंचक्की और थोड़ी सी जमीन और एक बाग छोड़ गए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अम्मी से कहा अम्मी जान ये अब्बू जान का बाग है, पंचक्की है, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है, मैं ये चाहता हूं इसको बेच दूं, सेल आउट कर दूं और ये तमाम के तमाम पैसा गरीब अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दूं। बोलो मेरी माँ तुम्हारा क्या मशवरा है।
حضرت خواجہ غریب نواز کی اماں نے کہا میرے لال جیسا تم چاہو ویسا کرو. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ابا جان کا باغ بیچا, چکی بیچی اور تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا بیچ کر اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیا. اب امی جان سے کہا امی جان اب میں جا رہا ہوں, اپنے نانا جان کا چہرہ دیکھوں گا, اپنے نانا جان کے گنبد خضرا کو دیکھوں گا, اپنے نانا جان کی سنہری جالیوں کو دیکھوں گا, اپنے نانا جان کے مزار کو دیکھوں گا, اپنے نانا جان کے شہر کو دیکھوں گا, اپنے نانا جان کے شہر کی گلیوں کو دیکھوں گا, اپنے نانا جان کے شہر کے محلے کو دیکھوں گا. امی جان جا رہا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز کی اماں نے کہا اے میرا بیٹا جاؤ جاؤ فی امان اللہ, جاؤ جاؤ فی امان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں, اپنے شہر سنجر کو چھوڑ کر, اپنے جنم بھومی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. دل میں آواز ہے اے میرے آقا تیرے دربار میں تیرا لخت جگر آ رہا ہے, فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا آ رہا ہے, حسن مصطفیٰ کا لاڈلا آ رہا ہے, حسین شہید کربلا کا نور دید آ رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز جا رہے ہیں, مدینہ طیبہ کی سرحدوں میں پہنچے, گنبد خضرا کے سائے میں پہنچے, سیدھے رسول اللہ کے بازار پہ پہنچے, آمنہ کے لال کے مزار پہ پہنچے. میرے سرکار خواجہ غریب نواز اپنے آقا کے جلووں میں پہنچے. سرکار کی مزار کے پاس بیٹھ کر حضرت خواجہ غریب نواز دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اور جب اسی ہی دعا کرتے کرتے میرے خواجہ کی آنکھ لگی. خواب میں حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے. آمنہ کے لال, زور سے بولو آمنہ کے لال, آمنہ کے لال تشریف لے آئے. حضرت خواجہ غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہے, عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے, ریاضت پہ ریاضت ہو رہی ہے. سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی جا رہی ہیں, درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے, درود پاک کے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں. آنکھ لگ گئی, سرکار تشریف لے آئے. والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہے, واللیل اذا سجا کی زلفیں سامنے ہے, علم نشرہ کا سینہ سامنے ہے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں سامنے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز سے جب میرے سرکار نے چہرے کو دیکھا تو میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا, جب میرے رسول مسکرائے تو بریلی کے تاجدار مسکرا کے بولتے ہیں, ادھر میرے رسول مسکرائے. بریلی کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ, پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ, سرکار تشریف لے آئے. کون تشریف لایا خواب میں؟ زور سے بولو صدیق بھائی, کون تشریف لایا خواب میں؟ میرے آقا تشریف لائے. حضرت خواجہ غریب نواز کی خواب میں میرے سرکار تشریف لائے اور مسکرا کے میرے سرکار نے فرمایا, کیا فرمایا بیٹا؟ اللہ اکبر کبیرہ. مسئلہ سنو, جب تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ ہو, کیا ہو؟ تمہارے سامنے جب کوئی یتیم بچہ ہو تو اس یتیم بچے کے سامنے کبھی اپنے بچے کو پیار مت کرنا, ورنہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. کسی بچے یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرنا, اور کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرنا, ورنہ اس بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے گا. کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش مت کرنا, کسی کمزور کے سامنے اپنی طاقت کی نمائش مت کرنا. خواجہ غریب نواز کو بیٹے کا لفظ سنے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا, بیٹا کہنے والے باپ کا انتقال ہو گیا. کون تھا جو میرے خواجہ کو اپنا بیٹا کہے؟ گنبد خضرا کے مکی نے میرے سرکار نے کہا بیٹا. خواجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے, میرا خواجہ رونے لگا. رسول نے فرمایا بیٹا. میرے خواجہ نے کہا میرے آقا, میرے بابا جان غیاث الدین مجھے بیٹا کہتے تھے, دل کو بڑی خوشی ہوتی تھی. سرکار جب سے میرے ابا کا انتقال ہوا ہے, آج پہلی مرتبہ میں نے بیٹا سنا ہے. تو میرے رسول نے فرمایا میرے بیٹا تجھے رونا نہیں,
तुझे मैं जहां भेजने वाला हूं वहां हजारों यतीमों के सर पे तुझे मोहब्बत का हाथ रखना। ऐ मेरे लाल, हजारों यतीमों के सर पे तुझे मोहब्बत का हाथ रखना है। सरकार ने फरमाया बेटा, मेरे ख्वाजा ने कहा मेरे आका फरमाइए। सरकार ने फरमाया मेरे लाल, अभी तू अपनी अम्मा को छोड़ के आया है, अब तुझे शहरे मदीना भी छोड़ना है, शहरे मदीना भी छोड़ना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना सुना, जब शहरे मदीना छोड़ना है दिल की कैफियत बदल गई। अभी तो मैंने अपना संजर छोड़ा है, अपने बाप का घर छोड़ा है, अपनी माँ का घर छोड़ा है, माँ की ममता को छोड़ा है, बाप की कब्र को छोड़ा है, अब मुझे नाना का रोजा भी छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्वाजा ने कहा आका कैसे छोड़ूंगा? तो मेरे रसूल ने फरमाया बेटा, तुझे फातिमा के बेटे इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करना है, इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करना है। गुंबद खजरा से आवाज आई बेटा मोइए बेटा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे दिलबंद, मेरे दिल के चहीते मेरे लाल, अभी तक तू हसन चिश्ती था, आज से मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया। क्या बना दिया? मोइनुद्दीन बना दिया। अब एक जुमला सुनो मौलाना नफीस हैदर साहब, दुनिया में अब तक दो लोग ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम का कोई दूसरा नहीं आया। एक मुहय्युद्दीन, मुहय्युद्दीन, गौर करो नारलई वालों, मुहय्युद्दीन, मुहय्युद्दीन मेरा गौस है। मेरे गौस के अलावा आज तक कोई दूसरा मुहय्युद्दीन नहीं आया, और मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन है, आज तक कोई दूसरा मोइनुद्दीन नहीं आया। वो दीन को जिंदा करने वाला है, ये दीन की मदद करने वाला। बोलो हिंदुस्तान में कोई और दूसरा मोइनुद्दीन है? नहीं मिलेगा। पूरी किताबें खोल डालो, पूरी तारीख उलट के रख दो, मेरे ख्वाजा के अलावा कोई दूसरा मोइनुद्दीन नहीं मिलेगा। गुंबद खजरा से आवाज आई मोइनुद्दीन, मैंने आज से तुझे मोइनुद्दीन दीन का मददगार बना दिया। सुभान अल्लाह, दीन का मददगार बना दिया, दीन का मददगार बना दिया। अब जरा गौर तो करो, दीन का मददगार बनाने वाला कौन है? ये वहाबी कहता है नबी किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, लेकिन मेरा नबी ख्वाजा से कहता है मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया, दीन का मददगार बना दिया। अब बरेली की आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ये कहता है नबी देगा, यहां तो मेरा नबी मोइनुद्दीन बना रहा है। क्या बना रहा है? मोइनुद्दीन बना रहा है। शफी भाई याद रखोगे जलसा, पूरी लाइफ हिस्ट्री जीवनी बयान करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने जब इतना सुना, गुंबद खजरा से आवाज आई ऐ हसन चिश्ती, मैंने तुझे मोइनुद्दीन बना दिया, अब तू मेरा शहर छोड़ दे, अब मेरे मदीना को छोड़ दे, मदीना की गलियों को छोड़ दे, मदीना की बस्ती को छोड़ दे, मदीना की आबादी को छोड़ दे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ऐ मेरे आका, मुझे जाना कहां है? मेरे सरकार ने फरमाया तुझे बहुत दूर जाना है, हिंदुस्तान जाना है, बहुत दूर जाना है। एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है। मेरे ख्वाजा ने कहा ऐ मेरे आका, मैंने हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं देखा है, हिंदुस्तान का पता भी नहीं मालूम है, हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता। जब मुझे शफी भाई ने बुलाया कि मुझे आपको नारलई आना है, तो मैंने सबसे पहले गूगल को खोला, गूगल में ट्रेन को सर्च मारा, पता चला ये फुला ट्रेन जाती है, ये नारलई नहीं फालना उतारेगी, फालना से कार के जरिए जाना है। रास्ता बताने वाला
गूगल मौजूद था, रास्ता बताने वाले कारी आदिल मौजूद थे, रास्ता बताने वाले यहाँ के लोग मौजूद थे, लेकिन मेरा ख्वाजा कहता है, ऐ मेरे आका, मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा है, हिंदुस्तान का रास्ता नहीं देखा है, हिंदुस्तान का नक्शा नहीं देखा है, हिंदुस्तान का पता नहीं मालूम है, हिंदुस्तान कहाँ है मुझे नहीं मालूम है। तो मेरा नबी गैब दा पैगंबर हजरत गुंबद खजरा से मेरा नबी ऐलान करता है, ऐ हसन चिश्ती मोइनुद्दीन, अरे तुझे देखने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, अल्लाह ने मुझे निगाह गैब दी है, अरे आना तेरा काम है, हिंदुस्तान का रास्ता दिखाना मेरा काम है। अल्लाह अकबर, कबीरा गौर तो करो। रसूल ने फरमाया हम दिखाएंगे तुझे। सरकार क्या गूगल के जरिए दिखाओगे? गूगल का तो वजूद नहीं था। क्या मैप के जरिए दिखाओगे? सरकार ने फरमाया अरे मैप तो बना भी नहीं है, फिर सरकार कैसे दिखाओगे? तो आला हजरत जवाब देते हैं, आला हजरत जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को रास्ता दिखा दिया। आलम तसव्वुर में ख्वाजा ने पूरा रास्ता देख लिया। अब मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा मोइनुद्दीन, जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो एक मुल्क पड़ेगा जिसका नाम इराक है, उस इराक में एक शहर पड़ेगा जिसका नाम बगदाद है। सबसे पहले इराक के शहर बगदाद जाना, बगदाद की जामा मस्जिद में जाना, वहां एक मेरा बेटा मिलेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम बगदाद जाना, बगदाद की जामा मस्जिद में जाना, वहां पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर मिलेगा, अब्दुल कादिर को मेरा सलाम कहना और मेरे बेटे अब्दुल कादिर से दुआएं लेना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, या रसूल अल्लाह ठीक है। हजरत ख्वाजा चलते हैं, मदीना की गलियों को छोड़ा, मदीना के बाजार को छोड़ा, मदीना के शहर को छोड़ा, मदीना के महलों को छोड़ा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ऊंट पे सवार होकर चल देते हैं, कहीं सवारी पे चलते हैं, कहीं पैदल चलते हैं। चलते चलते ख्वाजा गरीब नवाज शहर बगदाद आ गए। बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे तो देखा हजरत अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आजम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आते हुए देखा। ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे गौसे आजम ने अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, मेरे भाई, ऐ मेरे बेटे मोइनुद्दीन। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐ सरकार गौसे आजम, कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, आप मेरा नाम कैसे जानते हो, आप मेरा पता कैसे जानते हो, आप मेरा लक़ब कैसे जानते हो? तो मेरे गौस ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, अरे जिस रसूल ने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है, उसी रसूल ने मुझे गौसे आजम बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, अरे जिसने तुझे मोइनुद्दीन बनाया है उसी ने मुझे मुहय्युद्दीन बनाया है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या गौस, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे आजम ने अपने सीने से लगाया, कभी सर के ऊपर हाथ रखा, अपने कलेजे से मिलाया और कहा, बेटा मोइनुद्दीन, अब जाओ हिंदुस्तान चले जाओ। रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने तमाम वलियों का सरदार मुझे बनाया है और हिंदुस्तान के वलियों का सरदार तुम्हें बनाया है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अब वहां से चलते हैं, ईरान की धरती पर आते हैं। ईरान से चलते हुए उस जमाने का हिंदुस्तान और आज का पाकिस्तान, बंटवारे के बाद एक मुल्क पाकिस्तान बना, वो उस जमाने का हिंदुस्तान था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ईरान से पहुंचते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज काबुल होते हुए जो आज के जमाने का पाकिस्तान है उसी पाकिस्तान में आते हैं और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत
दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर 40 दिन का चिल्ला करते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर 40 दिन का चिल्ला करने के बाद अब पाकिस्तान, उस जमाने का हिंदुस्तान आज का पाकिस्तान है, वहां को छोड़कर अब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में एंट्री कर रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर आया और दिल्ली की सरजमीन से मेरा ख्वाजा इस राजस्थान की सरजमीन पर आ गया और राजस्थान की सरजमीन पे मेरा ख्वाजा अजमेर मुअल्ला अना सागर के किनारे आकर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ देता है। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के किनारे आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजान दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अना सागर के किनारे खड़े होकर बुलंद आवाज से पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जैसे ही कानों में उंगलियां डाली, अनास सागर के किनारे पहाड़ी पर खड़े होकर सदाए अल्लाहु अकबर कहा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज पृथ्वीराज चौहान के किले में पहुंच गई। कोहराम मच गया। ये नई आवाज कहां से आ रही है? ये नया गाना कहां से आ रहा है? पृथ्वीराज चौहान ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, जाओ देखो ये बाबा कौन खड़ा हुआ है, इसने हमारे मुल्क में कैसे अजनबी आवाज कही है। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आए, उन्होंने कहा, ए आने वाले फकीर, इस अना सागर को छोड़ के चला जा, इस अना सागर को छोड़ के चला जा, यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्वाजा ने कहा, सुन ले पृथ्वीराज चौहान के चमचे, मैं यहां जाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आमना के लाल ने सुबह कयामत तक के लिए भेजा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिंदुस्तान का हुकूमत बनाकर, हाकिम बनाकर भेजा है। अब पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तलवार के जरिए भगा दूंगा। हजरत ख्वाजा ने कहा, तलवार चलाना तेरा काम है और प्यार से जवाब देना मेरा काम है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही आ रहे हैं, मेरे ख्वाजा के दरबार में आए, ख्वाजा के बदकलामी शुरू कर दी। मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ऐ लोगो, क्या तुम्हारा बादशाह तुम्हें गाली सिखाता है? क्या तुम्हारा राजा तुम्हें फहुश कलामी सिखाता है? इतना सुनना था। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने कहा, ऐ फकीर, हमारा राजा तो यही सिखाता है, लेकिन तुम क्या सिखाते हो? तो मेरे ख्वाजा ने कहा, हम तो ये सिखाते हैं कि कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों का साथ दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने सुना कि तुम तो ये सिखाते हो, मजलूमों से प्यार करो, गरीबों से प्यार करो। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने इतना सुना, फौरन मेरे गरीब नवाज के कदमों में गिरते हैं और पुकार कर कहते हैं, ए गरीब नवाज, अब बोलो हमें करना क्या है? तो गरीब नवाज ने फरमाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अब मुझे बताओ, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों पर ख्वाजा ने कौन सी तलवार चलाई थी? कौन सा हमला किया था? कौन से वेपन से इस्तेमाल किए थे? कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया था? तो पृथ्वीराज चौहान के सिपाही कहते हैं, अरे ख्वाजा ने हम पर तलवार नहीं चलाई, तलवार के जरिए सर तो काटा जा सकता है, लेकिन दिल किसी का नहीं काटा जा सकता। अगर सर काटना है तो तलवार की जरूरत है और दिल काटना है तो प्यारो इश्क की जरूरत है। मेरे ख्वाजा ने इश्क का जाम पिलाया, पहली ही नजर में कत्ल कर दिया। हजरत ख्वाजा के दरबार में घिर गए। अब पृथ्वीराज चौहान ने एक अपना सबसे बड़ा प्रोपहत पंडित भेजा, जिसका नाम अजयपाल जोगी था। बहुत बड़ा ये साइंटिस्ट था उस जमाने का, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था उस जमाने का, और बहुत बड़ा, जिसको जादूगर कहते, बहुत बड़ा जादूगर था। अब पृथ्वीराज चौहान का ये अजयपाल जोगी मेरे ख्वाजा के पास आया। ख्वाजा पर सांप भेजे, ख्वाजा पर आग भेजी, ख्वाजा के ऊपर न जाने क्या क्या भेजे। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अरे तुम आग भेज रहे हो, हम
जन्नत की हवा भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा के दरबार में आया, ख्वाजा ने कहा आओ हमारे पास आओ। तो कहा ख्वाजा पहले हमसे मुकाबला तो करो। हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ने लगा। अजय पाल जोगी जब हवा में उड़ने लगा तो मेरे ख्वाजा मुसल्ले पर बैठे थे। मेरे ख्वाजा की नालैन शरीफ, मेरे ख्वाजा की जूतियां शरीफ, मेरे ख्वाजा के जोड़े शरीफ, मेरे ख्वाजा की खड़ाएं वहीं सामने रखी थी। हजरत ख्वाजा ने कहा वो आसमान में उड़ रहा है, तुम जमीन में पड़ी हो। बस अना सागर के किनारे हजरत ख्वाजा की चप्पलों ने, जूतियों ने, नाले ने, पाक ने, जोड़े शरीफ ने इतना सुना फौरन हवा में उड़ना शुरू कर देती है। अब बोलो बगैर डीजल के कोई जहाज हवा में नहीं उड़ सकता, बगैर पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती। ऐ मेरे ख्वाजा ये तेरी खड़ाओं में कौन सा इंजन लगा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी खड़ाओं में कौन सा पेट्रोल पड़ा था? ऐ मेरे ख्वाजा तेरी जूतियों में कौन सा तेल पड़ा था? तो मेरे ख्वाजा ने कहा अरे जहाज को उड़ने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, जहाज को उड़ने के लिए तेल की जरूरत है, और मेरी खड़ाओं को उड़ने के लिए हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुक्म गरीब नवाज की जरूरत है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओं ने कहा सरकार हुक्म दीजिए मैं उड़ जाती हूँ। अब मेरे ख्वाजा ने कहा जल्दी से उड़ो। अब खड़ाएं उड़ने लगती है, हवा में जाती है। अजय पाल जोगी के इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है, इधर पड़ती है। परेशान हो गया, फौरन मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और पुकार कर बोला अरे जिसकी जब जूतियों की ताकत का आलम ये है तो जो ख्वाजा की विलायत का आलम क्या होगा। कदमों में गिर गया। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पंडित था, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्रोपहित था, सबसे बड़ा भारत का वैज्ञानिक था, सबसे बड़ा भारत का जादूगर था। मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पृथ्वीराज चौहान से कहा ऐ पृथ्वीराज चौहान जो बाबा आया हुआ है इससे मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, बेहतर यह है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। सबसे बड़ा जादूगर मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे ख्वाजा ने ऐलान कर दिया जब मेरी ताकत का आलम यह है तो गौसे आजम की ताकत का आलम क्या होगा। जब मेरी ताकत का आलम यह है तो बाबा हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। जब मेरी ताकत का आलम यह है तो फातह खैबर की ताकत का आलम क्या होगा। जब मेरी ताकत का आलम यह है तो आमना के लाल की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत इसीलिए बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और ख्वाजा ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जश्ने गरीब नमाज। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल जोगी को कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या ख्वाजा साहब ने तलवार चलाई थी? बोलो, क्या ख्वाजा साहब ने कोई गाली दी थी? नहीं दी थी। वो एक मर्द कलंदर कारी आदिल साहब अजमेर में आया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के चला गया। सुभान अल्लाह। यही वजह है, बहुत कुछ करना है। When I will come to return your blaze Narlai, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world. अगर जिंदा रहा इसके बाद फिर आया तो फिर ख्वाजा की शान बयान करूंगा। आखिरी बात कह रहा हूं, मेरी कौम की माँ और बहनों तवज्जो से समात। आज तो हमने इंग्लिश बोली नहीं है, आज इंग्लिश बोली हमने, आज तो बोली नहीं इंग्लिश, फिर बोलेंगे कभी इंशाअल्लाह। अरे अमेरिका गए हम, अमेरिका नाम सुना है आपने? जब आपके इस गांव में बहुत पहले आए थे, 5-7 साल पहले आए थे हम, तो उस वक्त अमेरिका नहीं गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका भी हो आए, हॉलैंड भी चले गए, वेस्ट इंडीज भी चले गए। अल्लाह ने बहुत दुनिया के मुल्कों का दौरा करा दिया, क्योंकि हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं। जो ख्वाजा वहां से यहां आया तो ख्वाजा ने कहा हम यहां आकर काम करेंगे, अब तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है तुम दुनिया के कोने कोने में जाओ। सुभान अल्लाह। यह शान है मेरे ख्वाजा की। पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा जादूगर अजय पाल जोगी मेरे ख्वाजा के कदमों में आ गया। अब मेरी कौम की माँ और बहनों, अपने ख्वाजा के दरबार से लौ लगाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ख्वाजा को राजी करना है तो वहां के जाहिल
گندے نکمے رافضی مجابروں سے نہیں ملنا ہے، اپنے خواجہ کو سلام کرنا ہے، خواجہ کی تربت کو چومنا ہے۔ یہ جتنے مجابر ہیں یہ مخدوم سمنانی کے بھی دشمن ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے بھی دشمن ہیں۔ بولو، خواجہ کے مہمانوں کو مارا ان ظالموں نے۔ کس کو مارا؟ خواجہ کے مہمانوں کو۔ بھئی اگر کوئی مجھے مارے شفیع بھائی تو تم کیا پٹنے دو گے مجھے؟ قاری صاحب پٹنے دو گے؟ کیوں؟ کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو خواجہ کے مہمانوں کو ان ظالموں نے مارا۔ جب قیامت آئے گی تو میرا خواجہ بتائے گا کہ تو نے میرے مہمانوں کو مارا تھا۔ تھے تو میرے، کیسی بھی تھے، برے صحیح تو بھلے صحیح تھے تو میرے، خواجہ کے مہمانوں کو مارا۔ اس لیے اجمیر جاؤ، اپنے خواجہ کے پاس جاؤ، ان مجابروں سے نہ ملاقات کرنا ہے نہ ان سے ملنا ہے۔ یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، غوث اعظم کے بھی دشمن ہیں، اور رسول اللہ کے بھی مخالف ہیں، اور یہ کسی کی نہیں مانتے۔ بولو، اعلیٰ حضرت کے کلام کو منع کیا، جبکہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میں دیکھوں، اللہ کا قرآن بولتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو درج و بلند کیا۔ اب اس کا ترجمہ کر لو، اور شعر میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ بولو، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا میں نے رسول کو بنایا، اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے کائنات کے خزانے میں نے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اجمیر جانا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اجمیر والے خواجہ کا صدقہ ہے جو آج ہماری مسجدیں بنی ہیں، ہمارا دین بچا ہے۔ اگر ہمارا خواجہ نہ ہوتا صدیق بھائی تو آج احمد رضا منظری بھی نہ ہوتا۔ اگر ہمارا خواجہ نہ ہوتا تو خواجہ غریب نواز کے خلیفہ قطب الدین کا مزار نہ ہوتا۔ اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو کلیر کا علاء الدین علی احمد صابر نہ ہوتا۔ اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو نظام الدین محبوب الہی دہلی نہ ہوتے۔ اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نہ ہوتے۔ بلکہ میں پلٹ کے ایک جملہ کہہ دوں، اگر میرا خواجہ نہ ہوتا تو بھارت میں مسلمان نہ ہوتا، اور اگر بریلی کا احمد رضا نہ ہوتا تو سنیوں کا ایمان سلامت نہ ہوتا۔ میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے، اور خواجہ کے پھیلائے ہوئے دین کو احمد رضا نے بچایا ہے۔ نعرے تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا احمد رضا منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ دین کو پھیلایا ہے۔ ایک بات بتاؤ قاری صاحب، باپ کی پراپرٹی ہو، باپ کی، تو اس کو بچانے کے لیے کوئی سمجھدار اولاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو، اولاد اگر سمجھدار نہیں ہوگی تو باپ کی پراپرٹی ختم ہو جائے گی۔ تو بھارت کا جو مسلمان ہے کس کی پراپرٹی ہے؟ خواجہ کی۔ کس کی پراپرٹی ہے؟ بولو شفیع بھائی، زور سے بولو۔ یہ تمہارے چہروں پر داڑیاں کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ ہمارے سر پہ جبہ دستار کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ مسجدیں کس کی پراپرٹی ہیں؟ تو میرے خواجہ کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے کوئی طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے خواجہ نے کہا اللہ دین کو پھیلا تو میں نے دیا ہے، ارے بچانے والے کو بھیج دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی معین الدین، تو نے دین کو پھیلایا ہے تو دین کو بچانے کے لیے بریلی میں نے احمد رضا کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
دین کو بچانے کے لیے میں نے احمد رضا کو بھیجا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا, میرے خواجہ نے مسجدوں کو بنوایا, میرے خواجہ نے درگاہوں کو بنوایا, میرے خواجہ نے میناروں کو بنوایا, میرے خواجہ نے قرآن کے نغمات کو سنوایا, میرے خواجہ نے حدیث کو سنوایا, اور بریلی کے احمد رضا نے اسی خواجہ کے پھیلائے ہوئے دین کو بچایا. کبھی قلم کے ذریعے, کبھی کتاب کے ذریعے, کبھی شاعری کے ذریعے, کبھی اپنی طاقت کے ذریعے, کبھی فتوے کے ذریعے, کبھی الدولت المکیہ کے ذریعے, کبھی بالمادت الغیبیہ کے ذریعے, کبھی حسام الحرمین کے ذریعے, کبھی ہدایت بخشش کے ذریعے, کبھی انسائکلوپیڈیا آف فتاوی رضویہ کے ذریعے, کبھی الفوز المبین در حرکت زمین کے ذریعے میرے احمد رضا نے ربی کے دین کو بچایا ہے. اور کبھی میرے خواجہ امام احمد رضا نے دشمنوں پر شدت کہہ کے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ماشاءاللہ, یہ علماء بیچارے اپنی جیب سے کتنا قیمتی پیسہ دے رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. ہندوستان میں میرے خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے, اور میرے غریب نواز خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے, اور میرے رضا نے دین کو زور سے بولو بچایا ہے. تو سب بولو خواجہ خواجگاں دین کے وہ معین, خواجہ دین و ملت پہ, خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان, ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی نارنئی والو پھر ملیں گے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما گئی. سنو حضرت مجدد الف ثانی, کیا نام ہے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مزار سن ہند شریف میں ہے. کہاں پہ ہے؟ سر ہند شریف میں ہے. جنہوں نے اکبر کا مقابلہ کیا تھا. اکبر نے جب دین الہی قائم کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی نے مورچہ سنبھالا تھا. امام صاحب کس نے سنبھالا تھا؟ تو مجدد الف ثانی جب خواجہ, میری ماں بہنیں توجہ سنیں, جب مجدد الف ثانی ابھی دعا کروں گا, حضرت مجدد الف ثانی اتنے بڑے مجدد جب خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئے, کہاں گئے؟ خواجہ کے مزار پہ گئے تو وہاں پر آپ نے دعا مانگی, اور دعا مانگ کے بڑی حسرت بھری نگاہ سے آپ دیکھتے رہے مزار شریف کو. جیسے کہتے نہیں کوئی چیز سامنے عجوبہ آ جائے تو آدمی دیکھتا رہتا ہے. حضرت مجدد الف ثانی بڑی حسرت بھری نگاہ سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. میرے خواجہ کا کرم ہو گیا. اب سنو, جب نگاہ باندھ کر خواجہ غریب نواز کے مزار کو مجدد الف ثانی دیکھ رہے تھے تو اندر سے کسی نے مزار شریف کی ایک چادر حضرت مجدد الف ثانی کو لا کر دے دی. مجدد الف ثانی کو لا کر دے دی. جب لا کر دی تو وہ چادر کبھی آپ چومتے ہیں, کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں. اور اتنے بڑے مجدد جنہوں نے اکبر سے مقابلہ کیا تھا, سوچو کتنے بڑے مجدد رہے ہوں گے وہ, اکبر سے مقابلہ کیا, جب وہ چادر کو کبھی چوم رہے کبھی آنکھوں سے لگا رہے, اور اپنے شاگردوں سے کہا مجدد الف ثانی نے, اے میرے شاگردوں میری ایک وصیت یاد رکھو, جب میں مر جاؤں, جب میں اور مجھے غسل دے دیا جائے, کفن دے دیا جائے, اور جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو میرے کفن کے اوپر یہ غریب نواز کے مزار کی چادر کو رکھ دینا.
اتنا بڑا مجدد کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز کی چادر کو کہاں رکھ دینا؟ میرے کفن پہ رکھ دینا. مزار شریف خواجہ کا دیکھو کتنی برکت والا ہے. حضرت ادھر سنو ہماری حضرت مجدد الف ثانی نے کہا کہ وہ چادر میرے کفن میں رکھ دینا, مجھے امید ہے خواجہ کی چادر کے صدقے میں اللہ میری بخشش فرما دے گا. یہ مزار خواجہ کی چادر کا عالم یہ ہے, تو سوچو جو مزار کے اندر خواجہ لیٹا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کہا ہے خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان, ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام. اور اعلی حضرت کے بھیا استاد زمن کہتے ہیں اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا, اور کبھی محروم نہیں ہوتا مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں ہوتا مانگنے والا تیرا. ہندوستان کا راجہ زندہ باد, اس کی حکومت پائندہ باد. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ ہی رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.